हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट जनरल साइंस जो कि अभी रिसेंटली वो है रेलवे का DFCCIL एग्ज़ाम में आई हुई थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थी। उसमें लगभग साइंस का 26 क्वेश्चन थी और बहुत अच्छा क्वेश्चन मानी जाती है उसको। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा जब आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाली एग्ज़ाम RRB NTPC और ग्रुप डी में आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कौन कैसी तरीके से क्वेश्चन आई थी और क्या क्या थी। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, which of the following statement is correct? First statement is friction is caused by the irregularity of two surface in contact. Second statement is friction is necessary for evil. आपको पता होगी फ्रिक्शन चैप्टर फ्रिक्शन 1 तरह का फोर्सिंग होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। बढ़ती हूँ अगली क्वेश्चन की तरफ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, plants are divided into dash groups. Very common question. Plants are divided into 5 groups. These are Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Angiosperm and Gymnosperm. So I hope very easy question. Plants are divided into 5 groups. Going to next question. Okay, see this question number 3. Which the following statement is correct? Artery are the vessel which carry blood away from the heart to the various organ of the body. एकदम ठीक. Vein collect blood from the different organ and bring to back to the heart. स्टेटमेंट 2 भी एकदम सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। सो हमारी सही जवाब है ऑप्शन 2 द राइट आंसर। आप देखते चलिए कौन किसी तरह क्वेश्चन रेलवे में आ रहा है। तो जो कि TCS मैक्सिमम TCS कंडक्ट कर रहा है रेलवे एग्जाम को। तो आने वाले टाइम में इसी तरह का जनरल साइंस क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही मदद होगी। आप वीडियो की एंड तक जरूर बने रहिए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Which the following is a technique by plant yield read to the waste material? स्टोरिंग ऑफ द गम रेजिन। यस, अब जो अट्ठा और रेजिन प्लांट निकलती है वो एक तरफा रिमूवल टेक्निक होती है। दूसरी रिमूव फ्रॉम द फॉलिंग ऑफ लीफ निस्टाव इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन प्लांट रिमूव maximum amount of water. So both statements 1 and 2 are correct. Going to next question. Wait one minute. Yes. Question number 5. Which the following is not a non-contact force? Yani which the following a contact force? Everyone know that muscular force is a contact force. बाकी ऑप्शन मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉन कंडक्ट फोर्स। सो हमारी आंसर है ऑप्शन बी मस्कुलर फोर्स। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि आपकी पता होगी मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर। सो द सही आंसर है नाइदर 1 or 2. Okay, going to next question. In a concave lens, when the object at infinity, then the position of image will be dash. It is based on the mirror question on the physics part. So when concave lens object is infinite, so image will be at second focus or at f2. So our answer is at f2. Okay, going to next question. Question number 8. Which the following statement is true? Atomic radius increase in the moving from left to right. एकदम गलत आंसर क्योंकि आपको पता होगी atomic size decreases we move from left to right in a periodic table. Option 2, atomic size increase down the group. एकदम सही, in the down the periodic table atomic size increases due to successive add of cell, successive increase of cell. So the answer is only 2, atomic size increase when we move down the group. Okay, question number 8 answer is option 1. Going to next question, question number 9. Which the following pair of element atomicity is correct? Everyone, what is atomicity? Now number of atom present in element
द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एलिमेंट इज कॉल्ड एटमिसिटी। एक एलिमेंट में कितने एटम होती है उसके एटमिसिटी कहा जाती है। हीलियम मोनोएटॉमिक एकदम सही, ऑक्सीजन ट्राइएटॉमिक नहीं, ऑक्सीजन डाइएटॉमिक होती है। सो ऑप्शन वन ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ओनली वन इज आंसर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। See the screen. Question number 10. Our arm is joined to the soldier with, आपको पता होगी चार ऑप्शन सामने है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हमारे सोल्जर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होती है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन टू, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिजिल इज कॉज बाय डैश। आपको पता होगी वेरियस डिजीज कॉज बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो मिजिल कॉज बाय वायरस। सो आवर आंसर इज ऑप्शन टू, मिजिल कॉज बाय वायरस। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल। सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, नहीं, गलत है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, वो भी गलत है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल में, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो और आंसर इज नाइदर वन और टू। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पे राइट आंसर उन्होंने ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। व्हिच द फॉलोइंग इज कॉज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप देख सकते हैं, व्हेन मोटर बाइक मेक शार्प टर्न एट हाई स्पीड वी टेंड्स टू गेट थ्रू वन साइड, एकदम सही है। जब हम मोटर बाइक में एक टर्निंग को क्रॉस करती है, वहाँ पे स्लाइटली हमें बैक हो जाती है, एकदम सही है। व्हेन वी स्टैंडिंग इन द बस बिगिन टू मूव सडनली द टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। यस, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और मोशन का फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है। जब के स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, जब सडन में फोर्स अप्लाई हो जाती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। तो हमारी आंसर है बोथ 1 एंड 2, एकदम सही, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। सो आवर आंसर इज बोथ 1 एंड 2। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देख लीजिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, आपको पता होगी एनर्जी वेरियस तरफ की एनर्जी होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जिसमें हमें के शॉर्ट में कहा जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको पी भी कहा जाती है। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैग्नेटाइट इज ए नेचुरल मैग्नेट, एकदम सही, मैग्नेटाइट इज ए नेचुरल मैग्नेट। ए फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो स्टेटमेंट भी, स्टेटमेंट 2 भी एकदम सही है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन 4, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज डी, 4। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, sorry 1 minute, हाँ। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द गिवन ऑप्शन द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट व्हिच मटेरियल। आपकी पता होगी जब सॉलिड मटेरियल में स्पीड का साउंड मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज ज़्यादा पास रहती है। तो वाटर, लिक्विड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो हमारी आंसर है एल्युमिनियम। सो एल्युमिनियम इज द राइट आंसर ड्यू टू solid nature. Aluminum is a metal, so it is solid nature. So our answer is option 4. Speed of sound maximum in aluminum. Going to next question. What is the pH of blood? Very basic question. आपकी पता होगी pH blood 7.4 होती है, slightly basic nature होती है. So pH of blood is 7.4. So our answer is C. Question number 17, answer is C. Going to next question. Question number 18. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। आपकी पता होगी, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, आपकी पता होगी वॉशिंग सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाती है। सो आंसर इज फर्स्ट वन, वॉशिंग सोडा। बट सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहा जाती है, उसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई आ जाती है तो बेकिंग सोडा हो जाती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज फर्स्ट वन। देन क्वेश्चन नंबर 19, आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द मटेरियल व्हिच अलाउ हीट पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट, एकदम सही है। द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर, ये भी एकदम सही है।
So both statement are true. So question number 19 option is right answer is 2. So both 1 and 2 are correct. Going to next question. Atomic number equal to is the equal to number of proton present in element. So option 3 the right answer. Atomic number equal to number of proton. Going to next question. Growth hormone is secreted by which gland? It's the very basic question. Pituitary gland as responsible for the growth hormone. So question number 21 answer is B. Pituitary gland secrete growth hormone. Going to next question. Question number 22. Which the following cannot be by knip? आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम लिथियम आर द सॉफ्ट मेटल, सो दीज आर caught by the knip, but carbon is a non-metal but solid in nature which is cannot caught by knip. So right answer is option 4, carbon is the right answer. Question number 23. The sound frequency लेस देन अबाउट डैश वाइब्रेशन पर सेकेंड कैनॉट डिटेक्ट. आपकी पता है कि जो हमारे ऑडिएबल रेंज साउंड को जो ऑडिएबल रेंज होती है 20 टू लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है. सो बिलो 20 वी कैनॉट बी लिसन, above the 20,000 we cannot listen. So our answer is 20. Less than 20 we cannot be recognize it or vibration it. So question number 23 answer is option 2, 20. Next question number last question 24. Gastric gland are present in the dash. इस तो हमारे gastric gland जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन होती है. सो द वॉल ऑफ स्टोमक, अब जो स्टोमक जैसे होती है स्टोमक में वॉल के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है. तो सही आंसर है wall of the stomach. So these are the 24 questions which is recently asked in the DFCCL exam in the 2021. Okay, so this question is helpful very much in your upcoming railway exam such as NTPC Group D. So एक बार आप वीडियो देख लीजिए किसी तरह से क्वेश्चन आती है. आने वाले टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाली है. कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी TCS साइंस में दे रखा है. आपको पता होगा, देखिए वो जो स्टेटमेंट वाला थी वो जो बस क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 1 2, ओनली 1 ओनली 2, नाइदर 1 नाइदर 2, वो वाला क्वेश्चन भी उन्होंने दे रखा है. तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए. इसी हिसाब TCS जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा है. तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो वीडियो आपके लिए आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत मदद करेंगे. इसी हिसाब से आप उन्होंने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो. यदि उस वीडियो आपके लिए मदद हो सकती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही के साथ आपकी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए. मैं आने वाले टाइम में जनरल साइंस का वीडियो इसी तरफ से अपलोड करते रहूँगा. तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.